पीरियड स्टार्ट होने से मेनोपॉज तक का एक जर्नी है विमेन की, और जो कि वो बचपन से ही जानती है। हमारा टीनेज से हमें पता होता है एक मेनोपॉज भी एक चीज है जो 40 to 50 के बीच में आएगी। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली जब लेडीज शादी करती हैं, बच्चे करते हैं, तो वो इस फेज की मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती। वो जैसे उनके लिए सरप्राइज होता है कि मेरे इरेगुलर पीरियड्स हो गए अचानक, एम आई राइट। उसकी वजह से वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, उनकी पेशेंस कम हो जाती है, घर में क्राइसिस मैनेजमेंट उठता है, वो बच्चे पे बहुत ही रूड बिहेव करती हैं, और कुछ माएँ उस टाइम पर फिजिकल अब्यूज़ करती हैं, वो उन पे गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, वर्बल अब्यूज़ भी होता है बच्चे को। तो उससे बच्चे के साइकी पे, उसके साइकिक जो डेवलपमेंट हो रही होती है ब्रेन की, वो उसको डैमेज कर देते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को। मुझे ये पता होना चाहिए मेरा मेनोपॉज का एक स्टेज आएगा, और वो मेनोपॉज जो है वो नर्वस सिस्टम को भी और मेरे बिहेवियर को भी हिट करेगा। तो मेनोपॉज इज मूड स्विंग। अगर मूड चेंज हो गया, हस्बैंड तो मैनेज कर ले, बट बच्चे कैसे करेंगे? बिकॉज बच्चे पर ही निकलता है सारा। Am I right? Mostly. So they are the targeted audience for menopause. Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रिदवाना सनम. She is a holistic well-being coach, a social entrepreneur, a philanthropist, an author and a mentor. Welcome to the show, ma'am. Thank you so much कि आपने ये टाइम निकाला हमारे लिए. Thank you so much for inviting me and really happy to do a show with you. The pleasure is all ours, ma'am. मैम के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है, it's going to be a lot about holistic health and well-being. A few years back तक I think you would agree, people जो हैं वो mental, emotional, spiritual health पे इतना focus नहीं करते थे. Physical health को ही सिर्फ health माना जाता है, fitness माना जाता है. But then the times are changing, the priorities are changing. So this episode is going to cover all of these aspects के individual को 360 degree healthy and fit रहने के लिए क्या parameters होते हैं, क्या tips हैं, आप कैसे अपने आप को healthy रख सकते हैं. So can we start the conversation? Yes, please. सबसे पहले again, because a lot of people would not maybe understand what holistic well-being means and why is it important. अगर आप हमारी audience के लिए थोड़ा सा explain कर दें वो holistic health and well-being क्या होता है और क्यों ज़रूरी है. Okay. I'll make it very simple. I believe we are human beings. Am I right? Right. So well-being means being well. Means overall, emotionally, mentally, spiritually. So when we say holistic, it's as a whole, as a person. That means the environment matters a lot. Am I right? Even our thought process, emotions, and software, which is called spiritual side. Am I right? So I believe we all are spiritual beings experiencing the human life. Human experiences, am I right? We are here to experience something. It's like a travel. So during this journey, earthy journey, we have to take the best care of ourselves, to know our self-worth, right? What God has gifted us, a body. We are the custodians of body. We are not the owners of the body. We will take it for granted. Right. It is gifted to us by the divine, and it is our responsibility to look after this body as whole. That's why we can say it's holistic well-being, living a peaceful, joyful life throughout the journey. For that, holistic well-being is required. We need to look after each and every aspect of life. Right. बहुत beautiful बात आपने बोली मैम, which is that we are not the owner of this body, and I think वो कहीं ना कहीं एक sense of responsibility हमारे अंदर लाता है. Otherwise we do take it for granted. Very true. Have you realized if somebody would gift us something? Let us say I am gifting you a mobile phone. It is a gift. It's close to your heart. Right. You will take best care of it. True. If it is your own, you may take for granted. But if it is a gift, it comes with a sense of responsibility and love. Right. So divine has gifted us something. The moment we realize it, we get more careful to take best care of it. Right. Yeah, I believe that is very important. बिल्कुल. But also developing on the same aspect, I think आज का जो हमारा lifestyle है, even from the past decade, we have got so busy, maybe studies, career, family, or you can say all the worldly responsibilities, that कहीं ना कहीं हमारी जो health है वो responsibility तो हम consider करते ही नहीं है, वो prioritize करना has become very difficult.
So if you could share a little, your perspective on that, one, and second also कि इतनी busy life में, because we cannot, stay behind. That's also something very we have true. to keep we doing. have to achieve goals. Exactly. So उसके साथ हम अपनी health को कैसे manage कर सकते हैं, and that too holistically. I believe it's all about balance. Am I right? Everyone has 24 hours. Right. That means time management is the top priority. So if as a person I have to take care of my family, which is personal life, Right. social life, as well as a professional life. Right. So I need to balance it. For that, I have to manage the time. And if I want to do better in each segment, each responsibility, that means the planning is very important. And prioritizing it is also very important. And understanding that this whole thing, whether I am a good family member, I am a good professional person, or I am successful, or whatever goals I have, if I am healthy, then only I am going to achieve it. Right. So that means it is dependent on my health. So health has to be the top priority. And हम सब ने सुना है health is wealth. But इसको ना सिर्फ हम मानते हैं, जानते नहीं हैं. The moment we lose one organ or one body part because of some health issue, then we will pay all attention on our body. Right. And we may leave job, we may leave our social life, we may leave the family also. Why? Because we get engaged with our own self. Right. So what I have observed as a counselor, if people are focused on outside of the body, then they are not aware about themselves. There is lack of self-awareness. Okay. And because of that, they are not paying attention on Their own body. That means they don't know the worth of the self. It's lack of self-worth, Right. self-realization, self-awareness, self-empathy, lack of self-compassion, lack of self-understanding. They may achieve their goals, but end of the day, they are not peaceful. They keep searching for peace, love, and joy throughout their life. बिल्कुल. And everybody is achieving the goals. I believe if we want to fulfill our desires, wishes, and goals, we need to pay attention on, especially on our health. And it's not manna ki health is wealth. It is about janna, knowing that health is wealth. If I'm able to take care of my own health, that means I'll be able to take care of others. If I am happy, I can make somebody feel happy. Am I right? Right. So how we make people feel comes from inside us. What kind of energy we radiate. So everything is energy. If I'm radiating a positive energy, good vibe, that means I can have good relationships. I can have good people around me. I can attract the same people. So overall, this busy word is just a word, I believe. Because we all know there are so many books and so much information on internet that this brain is unlimited. If this brain is unlimited, that means we need to understand how to unlock the capacity of this brain as per our goal. And if we are able to do that, that means it becomes very easy. It is effortless, actually, if we plan before execution and if we execute according to the time management. Right. So I have not realized so far. People around me, they are very successful, they have achieved their goals. They never said we are busy. They would always say we have enough time. Okay. Please tell us what project we are supposed to do. So the people who feel the life is busy, that means it is the indication, pay attention on time management, please. Right. And one can manage 2 hours or 1 hour daily for the health. In that 1 hour, what can they do? Breathing, deep breathing with hold for at least 15 minutes, which will bring peace and patience. And if we have patience, that means patience is opposite to the anxiety. Anxiety is because of lack of patience. And if we have patience, we can do one task completely with Focus. mindfulness. And if we are mindful, it will be very productive. Second can be a yoga or basic exercise or a walk or a dance or any activity, small activity, whatever you like. Please do that. Or cycling just for 15 minutes. That means half an hour. Then there is still Half an hour. With half us. an hour. 15 minutes little bit of weight training, Okay. which is very important, especially for girls, women.
So I'm more concerned about women health as a woman. So, these triceps, they get sag easily. We need to put focus on that. We can focus on our tummy, which I have been doing since years, and still I'm not achieving my goal. So I believe consistent efforts are required. And the most important thing is 15 minutes where we can just give command to our nervous system, brain, the intelligence, the CEO of this body, how to execute the whole day. And if we can do few little meditation for 15 minutes, that means we are visualizing that day. We are preparing ourselves mentally that we are going to live this day according to this, and we are going to remind everything to our brain that, hey, this is my schedule and I can read it also while closing my eyes. If I remember this, nowadays it's very common, people keep saying, I forgot. Oh, it has just skipped somehow. I don't know what happened to me. This has become very common after COVID. That means we are not giving command to our nervous system, to intelligence properly, what task I have. That means the checklist, what to do list. That 15 minutes meditation will bring lot of balance and harmony for that particular day. I have experienced it practically, and I am speaking from the experiential point of view, what I have experienced. So I believe it's very easy to manage time and live a joyful and peaceful life. Okay, so ma'am, जैसे कि आपने बीच में ये भी mention किया that particularly for women weight training is very important. हालांकि सबके लिए at least 15 minutes you said कि आप दिन का weight training करें. There is a myth particularly in the Indian society कि women weight training करेंगी तो बल्कि हो जाएंगी, womanly दिखेंगी ही नहीं, right? So I want you to burst that myth and also specify कि weight training women के लिए क्यों important है, because अक्सर I think वो 30s या 40s के बाद जाके realize होता है, 20s में realize भी नहीं होता. So if you can build a little bit on that. There is a difference between tone and strength, muscle tone and muscle strength. Tone is controlled by the nervous system. जो हमारी nerves है उनकी वजह से हमारे muscles को supply आता है, और muscles जो है वो tone up होनी चाहिए. जैसे मैं basic example दूंगी, अगर कोई जिम जाते हैं और उनकी पूरी full body अच्छी है, but अगर paralytic attack हो गया तो वो बहुत बल्कि होंगे, स्ट्रांग है, बट वो अपना हाथ नहीं उठा सकते. क्यों? क्योंकि पैरालिसिस हो गया. Am I right? So इसका मतलब ये है कि कोई और भी चीज़ है जो सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, वो फुल स्ट्रेंथ में है, बट उनका हाथ नहीं उठ रहा है. इसका मतलब है कि जो नर्व्स है जो सप्लाई करती है मसल्स को, उसकी वजह से सप्लाई कम हो गया है, टोन लो हो गया है. तो गर्ल्स का टोन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये लिंक्ड है हमारे हार्मोनल सिस्टम के साथ. जो ही पीरियड्स आए तो ये मानिए कि गर्ल का जो बॉडी है वो डिफरेंट है दैन बॉयज़. इसलिए वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लो वेट्स, मोर रेपिटेशंस. अगर हम वेट्स कम लेते हैं, लेट से 5 kg, और हमने रेपिटेशन ज़्यादा किए, तो उसका मतलब ये है कि हम टोनिंग करेंगे. उसको स्ट्रेंथ नहीं कहते. जब बल्क बनता है, बल्क बनाने के लिए ह्यूज वेट्स करने होते हैं. वेट ट्रेनिंग, वेट्स ज़्यादा होंगे, रेपिटेशन कम होगा, उससे बॉडी बनती है. लेकिन मैं जहाँ तक कि फिजियोथेरेपी कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे मॉडल्स है, फिटनेस कोचेस है जो इंजरी लेके आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी, उनकी तो फिट बॉडी है, वो वेट ट्रेनिंग रोज करते हैं. दैट डजंट मीन कि वो बल्कि लगती हैं, वो फीमेल नहीं लगती. एम आई राइट? बिल्कुल. सो ये जो मेल और फीमेल वाली बात है, मेल को जेंडर बेस्ड वेट ट्रेनिंग नहीं है. वेट ट्रेनिंग के और भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उनका जेंडर क्या है, एज क्या है, क्या सूट करेगा. तो मेरी रिक्वेस्ट है कस्टमाइज्ड प्लान करवाए, एक्सपर्ट एडवाइस ले टाइम पर. चाहे वो आपका जिम ट्रेनर है, योगा ट्रेनर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, एक बार आप अपना असेसमेंट करा के आपका बॉडी टाइप क्या है, आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, आपका गोल क्या है, और अपना उसी तरीके से अपना प्लान ऑफ एक्शन बना दें. डाइट में भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. अच्छा डाइट हो तभी अच्छी बॉडी बनती है. नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड क्वेश्चन कि मेल और फीमेल जेंडर दिखना, मेरे ख्याल से फीमेल एनर्जेटिकली शक्ति है. सो फेमिनाइन एनर्जी है, इट्स नॉट अबाउट बॉडी. बॉडी को जैसा हम चाहें वैसा बना दें. तो अगर लो वेट्स, मोर रेपिटेशंस, टोनिंग हो गई, तो हम तो स्ट्रेंथ बल्क की बात करनी. वी डोंट वांट टू लुक लाइक अ मैन. एम आई राइट? सो जब मेरा वो गोल ही नहीं है तो मेरा मैनली बॉडी नहीं बनेगी. जो बनेगी वो फेमिनाइन ही बनेगी.
वेल टोन्ड बनेगी, ताकि मेरी मसल्स का जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है वो हेल्दी रहेगा। और विवेकानंदा ने इस पे बोला था कि मसल्स से ज़्यादा नर्व्स पे ध्यान दिया जाए। मतलब मेक श्योर दैट योर नर्व्स आर मोर स्ट्रॉन्गर दैन द मसल्स। हम क्या करते हैं फिजिकल बॉडी में, हम सिर्फ मसल्स पे ध्यान देते हैं, बट हम नर्वस सिस्टम भूल जाते हैं। तो टोनिंग करने के लिए मेरे ख्याल से गर्ल्स को पीरियड्स के बाद ध्यान रखना चाहिए। जैसे फंक्शनल वर्कआउट है, टोनिंग है वो, जब हम बॉडी का ही वेट यूज करते हैं। योगा हो गया, जो पावर योगा है, जो बॉडी शेपिंग के लिए किया जाता है, जो भी शेप चाहिए हमें, वो वेट ट्रेनिंग में ही माना जाएगा, बिकॉज हम बॉडी का वेट यूज कर रहे हैं वहाँ पे। अगर हम एक्सटर्नल वेट्स यूज कर रहे हैं तो हम लोग लो वेट्स लेंगे, रेपिटेशन हाई लेंगे। अगर हम टोन मेंटेन रखें तो फिर एजिंग तो होगी नहीं ना, और पीरियड्स का इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? सेरोटोनिन और डोपामाइन 2 हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, केमिकल्स और हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन केमिकल है। तो अगर वो रिलीज हो जाए तो वो जो प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम है, ये जो पीरियड्स का पीसीओडी वगैरह होना, अगर कार्डियो करेंगे तो पीसीओडी नहीं होगा। एम आई राइट? वी कैन प्रिवेंट इट। इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप सोचिए अगर एक सो कॉमन आज की डेट में। यस, वेरी ट्रू। तो अगर आजकल की गर्ल्स स्पेशली अपना ख्याल रखेंगी फिजिकल एक्टिविटी से, तो मेरे ख्याल से टोन वेल मेंटेन्ड रहेगा। एंड वो यूथफुल रहेंगे, अपनी एज से कम दिखेंगे, और अपने हेल्थ की रेस्पेक्ट करेंगे कि जो गिफ्ट है उसको वेल मेंटेन्ड रखें। वो मेंटेनेंस है एक, प्लस टारगेट ओरिएंटेड होगा। नहीं तो होता क्या यंग गर्ल्स में, जिस दिन शादी होगी उससे 1 महीना पहले वो जिम जाते हैं, फिर वहाँ फिर वहाँ वो ओनली फॉर फिजिकल लुकआउट। आई थिंक हेल्थ पार्ट तो मिस ही हो जाता है। यस, वो क्या करते हैं, क्योंकि लहंगा पहनना है। एम आई राइट? दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर अटायर, हाउ दे लुक। ट्रू। द क्वेश्चन इज दैट टाइम दे वुड डेवलप इंजरी एज वेल। उल्टा वो जो शादी का चार्म था, वो जो हैप्पीनेस थी, वो तो पेन की वजह से, पेन एंड प्लेजर कांट गो टुगेदर। एम आई राइट? तो उस टाइम पेन आता है, इंजरी आती है, वो हमारे पास आते हैं। बहुत सारे बॉयज भी पूरा वर्कआउट उसी टाइम करते हैं, 2 to 3 मंथ से शुरू होके वो इंजरी करते हैं, और जो उनको गोड़ी पे बैठना होता है उससे पहले फिजियोथेरेपी में आते हैं, हम टेप कर रहे होते हैं। अच्छा, बैक जो है स्टेबल रहना चाहिए उस टाइम पर। सो मेरे ख्याल से किसी भी फंक्शन को अगर हमें एंजॉय करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करें, और हम थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंसी में रोज़ 15 मिनट्स to 20 मिनट्स अपने लिए निकालें, और हम अपना ख्याल रखें। ट्रू। एंड जैसे कि अभी आप पीरियड्स की और पीएमएस की बात कर रहे थे, पीसीओडी की बात कर रहे थे, आई थिंक पीसीओडी की फिर भी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है यंगस्टर्स में। पीएमएस तो बिकॉज लाइक आवर जनरेशन ऑफ गर्ल्स, वी आर मोर वोक, we don't keep quiet। हमारा पीएमएस हो रहा होता तो we actually look for solutions, we talk about it, but I think एक topic which is still less talked about is the menopause part। Very true। because again वो अभी वो generation सफर कर रही है जिनके लिए periods एक टैबू रहे हैं। yes। जिन्होंने उस बारे में बात करना नहीं सीखा। yes। and then उनके आसपास की जो फैमिली है उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या फेज है, कैसे डील करना है, वो वुमेन जो है उनकी फैमिली में किस चीज़ से डील कर रही है, गो थ्रू कर रही है। सो अगर आप मेनोपॉज के बारे में भी फॉर वुमेन एज वेल एज द पीपल अराउंड देम कुछ टिप्स दे सकती हैं कि उसे कैसे गो थ्रू किया जाए। ये वैसी वाली बात है जिसे हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ट्रैवल। पीरियड स्टार्ट होने से मेनोपॉज तक का एक जर्नी है विमेन की, और जो कि वो बचपन से ही जानती है। हमारा टीनेज से हमें पता होता है एक मेनोपॉज भी एक चीज़ है जो 40 to 50 के बीच में आएगी। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली जब लेडीज़ शादी करती हैं, बच्चे करते हैं, तो वो इस फेज़ की मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती। वो जैसे उनके लिए सरप्राइज होता है कि मेरे इरेगुलर पीरियड्स हो गए अचानक। एम आई राइट? उसकी वजह से वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, उनकी पेशेंस कम हो जाती है, घर में क्राइसिस मैनेजमेंट उठता है, वो बच्चे पे बहुत ही रूड बिहेव करती हैं, और कुछ माएँ उस टाइम पर फिजिकल अब्यूज़ करती हैं, वो उन पे गलत शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, वर्बल अब्यूज़ भी होता है बच्चे को। तो उससे बच्चे के साइकी पे, उसके साइकिक जो डेवलपमेंट हो रही होती है ब्रेन की, वो उसको डैमेज कर देते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को। तो दैट मीन्स एज अ विमेन, अगर मेरी बच्ची है या बच्चा, जो भी बेटा है बेटी है, मुझे ये पता होना चाहिए मेरा मेनोपॉज का एक स्टेज आएगा, और वो मेनोपॉज जो है वो नर्वस सिस्टम को भी और मेरे बिहेवियर को भी हिट करेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन से आपने देखा होगा, हमारा जब प्री मेंस्ट्रुअल होता है उस टाइम पर हम बहुत ही मूडी हो जाते हैं, मूड स्विंग हो जाता है। तो मेनोपॉज इज मूड स्विंग। अगर मूड चेंज हो गया, हस्बैंड तो मैनेज कर ले,
बट बच्चे कैसे करेंगे, बिकॉज बच्चे पर ही निकलता है सारा. Am I right? Mostly. So they are the targeted audience Right. for menopause. So होता ये है कि हम उनकी पर्सनालिटी बनाने के बजाय गलती से केयर और लव कहिए इसे, बट हम उनको बिगाड़ रहे होते हैं, हम उनको डैमेज कर रहे होते हैं Unintentionally. हाँ. फिर वो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट को जा रहे होते हैं. मेरी मम्मी का नेचर चेंज हो गया अचानक. वाई? बिकॉज इट इज़ अ सरप्राइज कि मेरी माँ ऐसी थी नहीं और अब मेरी माँ ऐसा बिहेव कर रही है. तो बच्चा उसमें कुछ नहीं कर सकता. और कुछ बच्चियाँ होती भी है जो माँओं को इन्फॉर्म करती है टाइम पर, बट वो क्या करती है, वो उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं. कहते अरे आपको नहीं पता, मैं आपसे बड़ी हूँ एज में, मुझे पता है, मैंने दुनिया देखी है, मेरे पास तजुर्बा है. बट हम ये भूल जाते हैं आजकल का 20 ईयर्स का जो बच्चा है उसके पास फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है. दैट मीन्स उनकी जो मेच्योरिटी है वो 30 है. 10 ईयर्स ऐड करें या 13 ईयर्स आप ऐड करिए. दैट मीन्स आई हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू माई चाइल्ड एज इट इज़ 33. आई कांट से 20 का है. एम आई राइट? सो हमारी जनरेशन माँ बाप की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंडेंट थी. आपकी जनरेशन को सब पता है कहाँ पे क्या है. तो उनको अपनी बच्चों को उनकी एडवाइस को सीरियस लेना चाहिए. नंबर 1, अगर वो कहते हैं डॉक्टर को दिखाएंगे तो जाना चाहिए. गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उस टाइम पर साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है. तो किसी भी हाल में अगर अपना बिहेवियर चेंज हुआ और अगर अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपका बिहेवियर चेंज हो गया है और आपके पीरियड्स थोड़े भी फ्लक्चुएट हो चुके हैं, दैट मीन्स मेनोपॉज शुरू हो गया, तो प्लीज़ आप एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले लें ताकि बिहेवियर चेंज ना हो जाए. वो साइकोलॉजी के अंडर आता है. और सबसे दुख की बात यह है कि हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जबकि इसी के नीचे पूरी बॉडी है. अगर ये ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल है, जैसे एक रिमोट कंट्रोल है, तो वो मेंटल हेल्थ है. अगर वो ठीक है तो पूरी बॉडी ठीक है. अगर हम ऑर्थो के पास जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास प्राउडली बोलते हैं हम फिजियो कराने जा रहे हैं, हम पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के, तो मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट क्यों हमें बहुत अलग डिपार्टमेंट लगता है कि लोग हमें कहीं पागल ना कहें. बट पागल वर्ड तो है ही नहीं. हमने नहीं बोला कि मेंटली प्रॉब्लम है. हम कह रहे हैं कि थोड़ा हेल्थ इशू है, मेंटल हेल्थ का इशू आ सकता है, उसको प्रिवेंट करेंगे, बिहेवियर अच्छा रहेगा, हमारा घर जो है सुखी रहेगा, जिसको सुख कहते हैं, खुश रहेगा, और एक खुशहाल फैमिली, खुशहाल एनवायरनमेंट जो रहेगा, सबका करियर बहुत अच्छा बनेगा. तो एक फीमेल की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका काम है घर का एनवायरनमेंट सुखी रखना, खुश रखना. अगर वो पीस और जॉय मेंटेन रखेंगी, उनका अपना करियर, अपने बच्चों का करियर, अपने हस्बैंड का करियर, सब बैलेंस हो जाएगा. तो एक विमेन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गृहस्थी होती है घर को एनवायरनमेंट पीसफुल और जॉयफुल रखना, ताकि हमारे बच्चे खुशियाँ बाहर ना ढूंढे, वो गलत रिश्ते चूज़ ना करें. वो घर में स्ट्रेस है इसलिए बाहर ढूंढते हैं रिश्ते, और दे एंड अप विद रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड दे एक्सपीरियंस इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. और फिर हम ही लोग होते हैं जो उनको डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं. बट हम ये नहीं सोचते कि इसका रूट क्या है, ये शुरुआत कहाँ से हुई. क्योंकि घर में जो हस्बैंड वाइफ की फ़ाइट होती है, बच्चा नहीं बर्दाश्त कर पाता है. और आजकल के जो बच्चे हैं, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से उनका करियर चैलेंजेस बहुत है. इस दुनिया, आजकल की दुनिया में करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत चैलेंजेस ऑलरेडी है. तो एक बच्चा ऑलरेडी फेस कर रहा है. अब वो स्टूडेंट है, क्लासरूम है और अ प्रोफेशनल है, लेकिन उसके चैलेंजेस बहुत है, कंपटीशन बहुत है. तो घर में ना पीस होना चाहिए. जब हम घर आ जाएं तो ऐसा लगना चाहिए कि बस ये स्वर्ग है, ये जन्नत है. One should look forward to coming home. हाँ, तो घर का ना मम्मी का काम है, क्योंकि उसका असर रहता है पूरे घर पे. अगर मम्मी का मूड चेंज होता है, आपने देखा पूरे घर का ही चेंज हो जाता है. सो दैट मीन्स इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लीडर. इसको लीडरशिप कहेंगे. वाई? बिकॉज मेरा जो कॉस्ट्यूम उस टाइम है वो एज अ मदर है. मैं कॉस्ट्यूम में हूँ, मैं एक यूनिफॉर्म में हूँ. लेट अस से अगर मैं यूनिफॉर्म में हूँ, एक फौजी है, फौजी जब अपनी यूनिफॉर्म में होता है तो उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पुलिस ऑफिसर को है, लॉयर को है, डॉक्टर जब हम लोग कोट पहनते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल. इफ आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मदर, आई एम रिस्पॉन्सिबल. रोल ऑफ अ वाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल. तो मेरा कंसर्न ये है, ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेनोपॉज है, जो मुझे अंदर चेंज कर रहा है, कुछ जो मेरे बस में नहीं है, तो एक्सपर्ट एडवाइस बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने रिलेशनशिप्स को और अपने हेल्थ को बचाने के लिए. तो मेनोपॉज में हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है. Got it. I think ये बहुत ही important aspect है, because
usually women don't talk about it. They हाँ. take it for granted. और वो वेट गेन करते हैं उसी पीरियड में, Right. और फिर वो बोलते वेट स्लिमिंग करना है, बच्चे बोल रहे हैं आप बहुत मोटी हो, मेरा हस्बैंड कहता है बहुत फैट हो गई हो, एम आई राइट? तो वो ब्लेम गेम कहते हैं हम उसे, दे पुट इट ऑन देयर फैमिली अगेन, बट दे डोंट रियलाइज कि हार्मोनल चेंजेस से वेट गेन होगा, एम आई राइट? अगर वो उसी टाइम डाइटिशियन को कंसल्ट करें, उसी टाइम मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट को करें, और आज सबसे अच्छी बात है टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉल से सब काम हो जाता है। आजकल वीडियो काउंसलिंग्स अवेलेबल है, आजकल कंसल्टेशंस अवेलेबल है, क्योंकि टेलीमेडिसिन वीडियो वाला जो साइड है इसका या कॉल वाला, ये 2020 कोविड के बाद बहुत कॉमन हो गया है। सो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या विलेजेस हो या कहीं भी हम हैं, दैट मीन्स हम वीडियो का बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। अगर हमें एडवाइस पता होगी तो हम अपने ख्याल खुद रखेंगे, क्योंकि ख्याल रखने के लिए कोई नहीं आता, ख्याल अपना खुद रखना होता है। हम कभी कभी सोचते मेरे बच्चे मैंने पाले हैं तो वो मेरा ख्याल नहीं रखते, मेरा हस्बैंड मेरा ख्याल नहीं रखता, ये विमेन की स्टेटमेंट है, स्पेशली मैं काउंसलर हूँ। बट मैं ये सोचती हूँ कि आप अपना ख्याल क्यों नहीं रख सकते? तो आपकी बॉडी है, अगर आपका हेल्थ इशू ऐसा ऐसा हो गया तो आप तो फैमिली पे बोझा बन सकती हैं। सो दैट मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम कहते हैं ना कि जब हम, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, जब हम फ्लाइट में होते हैं ना तो हम कहते हैं पहले खुद को मास्क लगाएं फिर बच्चे को। अगर एक परिवार संभालना है, एक फैमिली संभालनी है, और एज ए विमेन लीडर है, ऑफिस संभालना है, एम्प्लॉयज़ है, हम टीम लीडर्स होते हैं, तो लीडरशिप का काम है पहले अपना ख्याल रखना, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल बनना। जो हम प्रैक्टिकली होते हैं, जो हम एक्शन में होते हैं, वो सब हमसे देख देख के सीख लेते हैं। तो हमें ज़्यादा प्रीचिंग की ज़रूरत नहीं होती बच्चे को बताना, बस मुझे रोल मॉडल बनना होता है। अगर मैं रोल मॉडल बनूं तो मेरे जो कलीग्स हैं वो मेरा कॉपी ऑटोमेटिकली करेंगे। सो आई बिलीव जो हम रेडिएट करते हैं, जो हम होते हैं, पहले हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उस पर कॉन्फिडेंस लाना कि मेरी यूनिक जर्नी है, मैं यूनिक यही हूँ। और जब हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं तो बाकी सब हमसे मोहब्बत ही करते हैं, पक्का। Very true, very beautifully put, I think. And Khaskar, I would want that whoever is watching this video, share it with the women you know, particularly elderly women, maybe your moms, your aunts, because हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं कल्चर है that women do not prioritize themselves, they do not take care of themselves. बट एज मैम हैज़ राइटली सेड कि अगर आप बाकियों का ध्यान रखना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर सकते। सो डू नॉट से कि मैं घर के कामों में बहुत बिजी हूँ इसलिए अपना ध्यान नहीं रख पाई, मैं ऑफिस के कामों में बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं अपना ध्यान नहीं रख पाई, राइट? बिकॉज टिल द टाइम यू डू नॉट फोकस ऑन योर सेल्फ, यू आर अल्टीमेटली इवन कॉम्प्रोमाइजिंग वाइल टेकिंग केयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. So thank you so much for putting forth this point, ma'am. And rest, you know that if there's any other topic that you want us to cover, put it in the comments, like and share this video, and stay tuned for the next episode. Thank you so much.